Friends, today is another beautiful day, and today we have made a Marwari menu from the western part of India. And the state of Rajasthan is very well known for its proverb that first is promise. If you make promise to somebody, you have to keep that promise till the end of your life, because promise is a form of God. And the Rajasthani people are very, very great. The Marwari people are very, very great. And the concept of the business making that has started from that particular point. If we go back, we will see that India was very great once upon a time during the period of British era, or even before that. Many people from various parts of the world, they came to India for the purpose of doing business. And we understand the business very well, we do the business very well, we cooperate with other businessmen very well. Not only with Indian peoples, Indians are very much cooperative from the length and breadth of the country to any part of the world, and we are very, very famous across the length and breadth of the world. You can very well understand. We can mention some of the names: Mr. Mukesh Ambani ji, then we have got Mr. Elin Mittal ji, Mr. Ratan Tata ji. They are all the business tycoons in the world, and they have shown that India can reach up to any extent, up to the height of the sky in terms of the business making activities. So we are the part and parcel of the Hotel Management IHM Gwalior. We boast, we feel very great to be a part of the Institute of Hotel Management, which is a central government body under the Ministry of Tourism, Government of India, and run by the NCHM in Noida. And we also produce the students after 3 years of BSc, after the Diploma Food Production, after F&B Diploma, after 1 year or 3 years for the hotel industry students or the manpower. And you know it very well that manpower is the most required power across the length and the breadth of the country, across the length and the breadth of the globe. And without the manpower, nothing is impossible. Nothing is possible. You understand that IT, that is information technology and artificial intelligence, these things are very much needed nowadays. It's very true. This is the demand of the time and need of the hour. But the thing is, who is the maker of such things, such like technologies? It's human beings, human brains. We make the students. I would like to request the cameraman to have a coverage of all the students who are present out here. You can see that all the students are very much eminent. They're very much submissive to their activities, to their work. And they can well understand what is discipline, they can well understand what is the food preparation process. And every day you can see that they're giving new concepts before the entire country, before the entire world. And Mr. J. Srivastava ji is turning his every stone, or I will say he's burning his midnight oil. He's not leaving any stone unturned to teach the students up to the greatest possible extent. I am Bankim Jordar, head of the Department of Food Production and F&B Service, and right now I am handling the Department of Diploma Food Production, that is kitchen part. I can see there's a very big development among the students. I would like to request our supervisor to say a few words before the students who would like to join the hotel management, and I will join you within a couple of minutes. My name is Mahita Singh Tamar. I am from Morena. आज हमने बनाया मारवाड़ी क्यून। आइए दिखाते हैं। ये मारवाड़ी कढ़ी, ये जोधपुरी कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, ये मारवाड़ी कचौड़ी, ये मलाई बूंदी। इसके बारे में बताएंगे चिकन का। You can see they have prepared it. Now I would like to request. Yes, please, you can continue. एक्चुअली आज हमने बनाई हुई है मारवाड़ी कढ़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले खाने का जो एहसास होता है ना, वो आँखों से होता है। इसलिए पहले आप देखिए। देखने के बाद पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कि एक शेफ सिर्फ खाना नहीं बनाता, वो एक एहसास बनाता है। एहसास बनाने के लिए जैसे आज हम ग्वालियर में हैं, लेकिन आज हमारा मारवाड़ी कुजीन से खाना बनाया हुआ है हम सब ने, तो जिसमें हमें ऐसा फील होता है जैसे हम राजस्थान में ही पहुँच गए हों। तो ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, जिसके लिए आज हमने मारवाड़ी कढ़ी बनाई है, जिसमें ना ही हमने दही का प्रयोग किया है,
और ना ही किसी अदर मसालों का। ये सिर्फ बेसन और आलू की सब्ज़ी, आलू बॉयल में आलू से बनाई गई कढ़ी है। दैन इसके साथ में हमने अमचूर की चटनी भी बनाई है। एक बार चटनी भी दिखाइए। मैं सुपरवाइजर से बोलूँगा आप इसको टेस्टिंग प्रोसेस को चालू रखिए और 2-3 दोस्तों को बता दीजिए कैसे इसका सर्विस होते हैं। आप लोग देख रहे हैं मित्रों कि हमारे जो बच्चे हैं वो सर्विस के प्रक्रिया भी आपको सिखा रहे हैं, किस तरीके से कड़ी को सर्विस करे जाते हैं, किस तरीके से चटनी को मिलाए जाते हैं, किस तरीके से मिक्स किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें होटल मैनेजमेंट में सिखाए जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है और ये अब डाल रहे हैं मारवाड़ी कड़ी। और इसका कलर को देखिए आप, कलर कैसे डाइल्यूट हो रहा है और धीरे धीरे ये चारों तरफ फैल रहा है। अभी इस चीज़ को मैं हल्का सा टेस्ट करना चाहूँगा। मैं सुपरवाइजर को भी बोलूँगा कि हल्का टेस्ट करें, क्योंकि जब तक खाने को टेस्ट नहीं करते हैं तब तक उसकी असलियत हमें पता नहीं चलेगा। आपको एक मैं बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। आपको पता है कि पोटेशियम साइनाइड जब इसका आविष्कार हुआ था, उस समय इसके टेस्टिंग के लिए किसी साइंटिस्ट ने इसको शायद टेस्ट किया था। मुझे भी मैंने भी सुनी हुई कहानी है ये। और इसका टेस्ट बताया जाता है एस, यानी कि आइदर सावर और स्वीट। इसका मतलब क्या है, वो इतना बड़ा जहर है कि उसको जीभ से लगाने के तुरंत कुछ ही सेकंड में जो इंसान जीभ से लगाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए इंसान इतने बड़े होते हैं, वो मृत्यु का डर बिल्कुल मन से निकाल देते हैं। हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें पूरे पृथ्वी को आगे बढ़ाना है। तो उस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे बड़े बड़े डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने कभी भी अपनी जान का परवाह नहीं किए बगैर उन्होंने साइंस को आगे बढ़ाया, उनका टेस्ट को उन्होंने जाना। तो एस लिखा जाता है, उसका मतलब या तो स्वीट होगा या फिर सावर होगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा मित्रों कि हर शेफ को चाहिए कि खाना कैसा है, उसमें कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन है या नहीं, ये केवल शेफ ही बता सकता है। तो मैं डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मैं इसको खाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्शन होना ही है, लेकिन मुझे पता चलेगा कहाँ पे खटास ज्यादा है, कहाँ पे मिठाई ज्यादा है, कहाँ पे नमक ज्यादा है। यहाँ पे मैं बोलूंगा जो लोग बीपी के मरीज है उनको नमक ज्यादा खाना मना है। तो जब मैं इसको चखता हूं तब मैं सावधान कर देता हूं लोगों को कि इसमें नमक ज्यादा है, कल से नमक कम डालिए। अगर कम है तो मैं फिर बोलता हूं नमक को ज्यादा करिए। इसका मतलब क्या है कि मैं लोगों की जीवन से होने वाली जो संभावनाएं हैं हेल्थ से संबंधित, उसको मैं पहले से मैं सावधान करता हूं। ये हर शेफ का काम है। तो मैं इसको चखूंगा। यहां पे मैं बोलूंगा कि मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। दिनेश जी ने बहुत ही अच्छा मसाला दिया है और इसको जब खाएंगे हेल्थ में कहीं पे भी कोई गलत असर नहीं आने वाला है। मैं खुद आपको बोलूंगा कि मुझे भी कुछ मेडिकल जो बीपी, शुगर, इस तरह की चीजें एज के साथ हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको खाने के बाद मेरे शरीर में कोई असर नहीं होता है। जबकि हेल्थ इश्यूज के लिए मैं भी दवाई लेता हूं, वो दूसरा कारण है, लेकिन मैं इसको टेस्ट इसलिए करता हूं कि कोई असर अगर मुझ पे हो रहा है तो मैं मेरे मित्रों को, मैं दूसरे लोगों को बोलूंगा कि इसके सेवन से आप थोड़ा रुके रहिए, मुझे टेस्ट करने दीजिए। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं ये बिल्कुल सही है, दिनेश जी जब बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाया गया है, बड़े परीक्षण के साथ खाना बनाया गया है। और इस खाने को खाने के बाद मैं पूरे उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना है, बहुत ही सुंदर खाना है और रीजनल दृष्टि से ये बहुत ही परफेक्ट है। और हम लोग यहाँ पे मेडिसिन से संबंधित, यानी कि जो आयुर्वेदिक क्विजीन है, यहाँ पे जो आपके ऐसे क्विजीन है जो आपके हेल्थ इश्यूज को जो है रिकवर करता है, उसके बारे में भी हम जो है हॉस्पिटल केटरिंग के मेनू हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो इसलिए आप जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल से संबंधित नर्सेस हैं, कोई अगर हुनर से रोजगार जैसा कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के मेनू को आपको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मैं आगे चलूंगा, सुपरवाइजर को मैं बोलूंगा कि ये जो हमारी जोधपुरी कचौड़ी है, प्याज कचौड़ी, एक बार इसका क्लोजअप लीजिए और यहाँ पे मिस्टर जाटव आप कचौड़ी को हाथ में उठा के हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि किस तरीके से ये गोल आकृति से बने हुए हैं और कितने मनमोहक हैं। मित्रों, आप किसी भी दुकान में जाएंगे आप देखेंगे कि कचौड़ी जो वहां पे सजे हुए होते हैं वो बहुत ही माउथ वाटरिंग होते हैं, मुंह में पानी आने वाला होता है। तो यहाँ एकदम ऐसा है कि आप इसको देखते ही आप सोचेंगे कि हमें भी ऐसा खाना बनाना आना चाहिए। तो प्लीज आप IHM ग्वालियर में आइए, एडमिशन लीजिए। मैं सुपरवाइजर को बोलूंगा कि अपने हाथ से एक कचौड़ी को तोड़िए, तोड़ के अंदर का जो हिस्सा है
वो हमारे दर्शक बंधु को बताएं और कुछ कमेंट आप पास करें। इसमें कुरकुरापन है, इसमें कलर भी बहुत सुंदर है और अंदर देखिए मित्रों बहुत ही सुंदर तरीके से पका हुआ है। एक एक चीज आपको सफाई से दिखेंगे। मैं जानना चाहूंगा इसमें कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है जिन्होंने बनाया है। हेलो गाइस, इसमें हमने प्याज का और पोटैटो का यूज़ किया हुआ है और होल रेड चिल्ली का यूज़ किया हुआ है और चाट मसाला एंड होल कोरिएंडर का यूज़ किया है एंड मैदा का यूज़ किया है। और मिंट चटनी में तो आपको पता ही है ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर एंड जिंजर गार्लिक एंड कर्ड का यूज़ होता है। और ये अपनी सॉस चटनी है जिसमें अपना टेमरिंड यूज़ होता है एंड जिंजर पाउडर यूज़ होता है एंड शुगर यहाँ पर जैगरी का भी पल्प डाल सकते हैं। बहुत सुंदर मित्रों, तो मैं अभी सुपरवाइजर को चाहूंगा कि हल्का से इसको एक हिस्सा आप हाथ में लीजिए और लोगों को टेस्ट कराइए। आप मुझे भी टेस्ट कराइए क्योंकि हर वक्त टेस्ट से हमें उसकी त्रुटियां पता चलता है, उसका नामकरण जो है हम लोग करते हैं, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे एक टुकड़ा और किसी को दीजिए आप, मैं इसको हल्का सा खाऊंगा। एकदम परफेक्ट है, ऑयल बिल्कुल सही है, नमक सही है, इसके डननेस जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कलर सही है, चटनी का स्वाद बहुत ही सुंदर आ रहा है। मित्रों ये एनी टाइम फूड है, इसको आप कभी भी सेवन कर सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे मावा कचौड़ी। मावा कचौड़ी की जो बनावट है मारवाड़ी ओके, माफ कीजिएगा, ये है मारवाड़ी कचौड़ी। मारवाड़ी कचौड़ी जो है इसकी गोलाई को आप देखिए, सजावट बिल्कुल लगभग एक ही है। तो एक जनी इसको आप बीच में से तोड़िए, तोड़ के आप दर्शक बंधु को दिखाएं कि मारवाड़ी कचौड़ी में अंदर का जो हिस्सा है वो किस तरीके से कुरकुरेपन बरकरार रखा गया है। अंदर अगर स्टफिंग है तो हम उसको देखना चाहेंगे, दर्शक बंधु को आप बताएं। और बहुत ही सुंदर तरीके से टूट रहा है मित्रों। यहाँ पे हल्का सा टेस्ट करिए, रोहित जाट आप टेस्ट करें, रोहित जाट आप भी टेस्ट करें और मेरे हाथ में भी दीजिए। यहाँ पे हमारे दूसरे जो है स्टूडेंट्स करें, उनको आप दीजिए। तो दोनों में मित्रों जब आप खाएंगे आपको टेस्ट का अंतर पता चलेगा और इंसान का जी भी सब कुछ है, वो बताते हैं कि किसमें स्वाद अच्छा है, किसमें स्वाद और डेवलप करना है और किसमें स्वाद एकदम परफेक्ट है। तो मैं इसको खा के देखूंगा। कुरकुरापन बहुत ही सुंदर है, स्वाद बिल्कुल अलग है, अंदर जो चीजें मौजूद है वो साफ साफ पता चल रहा है और इसको अगर चटनी के साथ खाएंगे तो स्वाद कुछ अलग ही होगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। आगे हम लोग चलेंगे जो मलाई बूंदी है। कैमरामैन आप क्लोजअप लीजिए और मैं आप से आग्रह करूंगा कि दो शब्द हमारे दर्शक बंधु को बताएं। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, माय नेम इज अक्षरा। आज का जो कुजीन है या मेन्यू है ये हमारा मारवाड़ी मेन्यू है और जिसमें हमने जो डेजर्ट बनाया है, मिठाई बनाई है, ये भी मारवाड़ी है लेकिन हमने इसे बंगाली टच दिया है। उसमें क्या होता है कि जो बूंदी बनाई जाती है वहाँ पानी डाला जाता है बैटर बनाने के लिए और यहाँ जो बंगाल साइड है इसमें दूध डाला जाता है बैटर बनाने के लिए। तो हमने यहाँ जो बूंदी है इसको पहले इसका बैटर बनाया, आफ्टर दैट इसको यही बनाया है, बूंदी को बनाया गया है, ये परचेज वाली नहीं है। फिर इसको चाशनी में डाला है, उसके बाद इस पर रबड़ी से गार्निश किया है और चेरी से गार्निश। बहुत सुंदर। तो मैं अब चाहूंगा कि आकृति आप इसको हल्के से आप इसको आराम से टुकड़ा करें और कुछ बच्चों को खिलाएं, आप मुझे भी खिलाएं। मित्रों हम लोग खाने में माहिर हैं और हम लोग खाने में इसलिए माहिर है क्योंकि हम लोग खाने से जो है खाने को प्यार करते हैं, खाने का सम्मान करते हैं। हाँ, हम लोग नाराज भी होते हैं। कब नाराज होते हैं आप जानते हैं? हम तब नाराज होते हैं जब कोई खानों का बर्बाद करता है, कोई खानों का असम्मान करता है और खानों को जो है अच्छी तरीके से जो नहीं समझता है, हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि खाने का आप संपूर्ण सम्मान करिए, उसको सही तरीके से रखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करिए, गार्बेज को सही तरीके से कंट्रोल करिए और खाने के वो उतना ही प्लेट में लीजिए जितना आप खा सकें। उसकी बर्बादी जो है अन्न का अपमान होता है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम खाने को प्यार करते हैं, खाने का सम्मान करते हैं और खाने को हम पूरे विश्व को हम खाना बनाने का तरीका सिखाते हैं। अब मैं इसको खाकर देखूंगा। स्वाद बिल्कुल अनोखा है, इसमें बूंदी बिल्कुल अंदर अलग से झलक रही है
चाशनी बहुत सुंदर है, मलाई बिल्कुल साफ साफ उसकी मौजूदगी हमें एहसास दिला रही है, और दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है। और एक तीसरी चीज को ये जन्म दे रहा है, और ये जो चीज है, थर्ड चीज जो आ रही है यहाँ पे, यही जो है खाने के डिश की जो सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो आज के ये एपिसोड बहुत ही मनमोहक रहा है हमारी तरफ से। और दर्शक बंधु, आप जो देख रहे हैं, आपसे हम लोगों का अनुरोध है कि हर एपिसोड को आप बड़े अच्छी तरीके से देखिए और अपने आप से पूछिए कि कहां पर हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत है, सूचित करने की जरूरत है कि हमें यहाँ पे डेवलप होना है, क्योंकि हम तभी डेवलप करेंगे जब आप हमारा साथ देंगे। और हम चाहते हैं कि आपका साथ और हमारा साथ मिलके हम एक ऐसा नए भारत का निर्माण करें ताकि पूरा विश्व देखे कि ये है भारतवर्ष, ये है भारतवर्ष के बच्चे, और ये है शेफ, भाभी शेफ, जो आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक नया दिशा देगा। और हम गर्व से कहेंगे कि हम जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट में नंबर 1 है, और हमें हराना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हम जीतना जानते हैं, हम सिखाना जानते हैं, हम सीखना जानते हैं। तो मित्रों, आज का एपिसोड आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं बंकिम जवाहर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। सम्मानपूर्वक मैं निवेदन करूंगा, अपना ख्याल रखिएगा और खानों का सम्मान करिएगा, और हमेशा उतना ही खाएं जितना आप उसको डाइजेस्ट कर सके, और खानों का बिल्कुल बर्बादी आप रोकें। धन्यवाद।